And she was so weak, she broke her leg the moment she came. Something new. So we have 3 of them with eye infection and some shit. So we were giving them medication. We met the canteen. No wonder you are like. Support and raise your voice. That's the one, Anush. That's the one. Support and raise your voice. Say hi. Say hi. Say hi. Hello. Hello. How this thing happened to you and how you become a part of it. Tell us what would be the strategy of yours. I wouldn't call this a noble cause. Exactly, yeah. This is a cause that I think every one of us has to take up. हम सबको इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि this is not only about Avni. This is not only about her saving her cubs. This is not only about saving a forest. It is about saving the environment. It is about saving ourselves, our family, our future. What do you think, Anand? Absolutely. If we think that we are the superior race and we hold rights over this planet, I'd like to differ, I'd beg to differ, because I think the planet was first occupied by the flora, the fauna, the forests and the animals. We came in last. Even if you go by the theory of evolution, we came in last. So we have no rights to displace people who were there first. And it's as simple as that. Biologically, if you want to exist, like somebody very nicely said, the planet is going nowhere. It's we who are going. Absolutely. Avni is not just a tigress. Avni is now become a huge moment, setting a precedent for all the other tigers and all the other wildlife that are endangered. At the mercy of man, greed, you may call, or whatever reasons you may call, which is completely unfair. And 60 to 70% of our forest is now getting wiped out. We are entering closer to the year zero, which you call the number zero. I think by 20... In the last decade itself, we've wiped out about 60% of animal species. So, our animals, especially the tigers, are endangered species. And Avni's death was not a natural death. It was a cold-blooded murder. And it is completely wrong and unfair that we don't give her justice for other animals through Avni. And her 2 little cubs who are in the forest all alone without their mother. They're too young to hunt. And anybody who says that no, it's fine, they're fine on their own, I'm sorry, I beg to differ, they're not. Nobody knows as much as the wildlife environmentalists and conservationists. They know better than any of us probably do, because none of us are wildlife experts. But even though they have said it, nobody's paying attention. Why? Why aren't teams being sent into the forest if they don't have enough of manpower here in Maharashtra? Get teams from outside. Go and search for the cubs. We need them. Our land, our forests, everything we need for our own development, for our own survival. If we don't do this, it'll be too late. No, I think it's totally social apathy because no one really cares. I mean, we are trying to raise awareness through
mochas and through gatherings and through demonstrations. But does anyone really care? I mean, we did this candlelight march when unfortunately girls were raped, but did rapes ever stop? The sad and the frightening part is that in spite of we or all those people who are aware of this doing this, I spoke to a lot of animal environmentalists, like Priyanka said, a lot of animal wildlife cameramen, and they were all very, very clear that Avni's death was totally engineered. It was not an accident, and it was a cold-blooded murder. And people at the helm of affairs, I mean, people who have actually got the power to stop this, why aren't they stopping it? Is it like the Kashmir issue, which is so deep and so rotten that we'll never get to the bottom of it? Or we really don't want to do anything about it? Are we doing this in the name of development? Are we doing this in the name of sports, legalizing hunting? Why are we really creating excuses for ourselves and actually making this look all absolutely fine and legal, you know, when what we are really doing is absolute cold-blooded murder and wiping out a very, very rich part of this planet? Actually, sorry. Please come. No, go ahead. No, go ahead. Please go ahead. Okay, coming to the Avni thing, because हम आज यहाँ पर मिले हैं कि 11 नवंबर को एक ग्लोबल प्रोटेस्ट हो रहा है, सिर्फ बॉम्बे में नहीं, मुंबई में नहीं, पूरी दुनिया में लोग खड़े हुए हैं कि जो अवनी के साथ हुआ वो किसी और जानवर बोलने में भी शर्म आती है, क्योंकि आज हम जानवरों से बदतर बन चुके हैं। ऑलमोस्ट 462 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड अंबानी को बेच दी गई है। दिस इज़ कम आउट एनीवेज। और वो फॉरेस्ट है अवनी का फॉरेस्ट, जहाँ पर 7 टाइगर्स रहते हैं, अवनी के बच्चे भी हैं। अब गवर्नमेंट को वो ज़मीन चाहिए। उस फॉरेस्ट को सैनिटाइज करने के लिए अवनी को फ्रेम किया गया कि वो मैन ईटर है। पहली बात तो वो मैन ईटर नहीं है, हर जगह पे मेंशन किया जा रहा है मैन ईटिंग टाइग्रेस किल, शी इज़ नॉट अ मैन ईटिंग टाइग्रेस। पहली बात, यू हैव टू अ टाइगर और एनी वाइल्ड लाइफ हैज़ टू किल अबाउट 4 पीपल टू बी डिक्लेयर्ड एज अ मैन ईटर। ओके, जो 13 बॉडीज़ मिली उसमें से सिर्फ 3 का पोस्टमार्टम हुआ, जो लास्ट 3 मिली हैं उन 3 में से भी अवनी का डीएनए कितने बॉडीज़ में मिला है पूछिए आपकी गवर्नमेंट से, पूछिए ये। हाँ, एक ही में टाइगर डीएनए, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई सेड आज मुंगंतीवार कितने में मिला है? तो आप अवनी को मैन ईटिंग टाइग्रेस का करार पहली बात कैसे दे सकते हैं? जस्ट बिकॉज वो बोल नहीं सकती, आपने उसके ऊपर मुकदमा भी चलाया, आपने उसके लिए लड़ाई भी की, आपने उसको डिक्लेयर भी कर दिया, आपने सपोजिशन के बेसिस पे उसको मैन ईटिंग टाइगर बना के उसे मरवा दिया। कहते 2 महीने से हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, आप 2 महीने पहले अगर उसे ढूंढ लेते ना तो आपको तभी उसे मार देते। शायद नवरात्रि के लिए रुक गए थे कि हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो, भैया हमको हिंदू वोट्स गायब नहीं करने। पहली बात तो ये मुंगंतीवार मर्डरर है, इसको निकालो इसकी जगह से। कमाल की बात ये है कि ये लोग एक्चुअली इन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि ये जो 2 कब्स हैं वो भी मैन ईटिंग कब्स हैं और उन्होंने मैन के फ्लेश को 10 महीने के बच्चे हैं, वो हंट भी नहीं कर सकते, मुर्गी तक नहीं पकड़ सकते, वो क्या इंसान पकड़ेंगे? और जो फॉरेस्ट में आपके मिनिस्टर ही बोल रहे हैं वहाँ पर मेला लगा हुआ है, पांढर कावड़ा में मेला लगा हुआ है, मतलब लोगों का आना जाना है उस फॉरेस्ट में। अवनी का जब पोस्टमार्टम हुआ उसका पेट खाली था, मतलब कम से कम वो 4 से 5 दिनों से खाई नहीं थी। और कई सारे लोगों का ये कहना है कि हम अवनी के रूबरू हुए, हमने अवनी को देखा, तो अगर वो मैन ईटिंग थी तो उसने उन्हें अटैक क्यों नहीं किया? भूखी मरती वो। स्पेशली उसके 2 बच्चे भी भूखे थे, उसके 2 बच्चे भी भूखे हैं अभी तक। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रही, उनको गोली मार के मारने की बजाय वो चाहती है कि उनको भूखा मार दे, ताकि ऐसे सब यहाँ पर हम बैठ के, हमारे जैसे लोग बैठ के ना चिल्लाएं, नारे ना लगाएं, रास्ते में जुलूस ना निकालें। राइट, सो इट इज़ ईजियर टू लेट देम डाई ऑफ स्टारवेशन। वी वॉन्ट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो 100 लोग अंदर भेजी हुई है टैक्स पेयर्स मनी में, उनके बाप का पैसा नहीं है, अंदर जब भेजा हुआ है आप लोगों ने तो ढूंढ के निकालो ना। क्या 2 शेर के बच्चे आपको नहीं मिल रहे इतने लोग लेकर? हम जाते हैं, हम लोग में से 20 जन को भेज दो, ढूंढ के निकाल लेंगे। आप टेररिस्ट को ढूंढ निकालते हैं, स्मोक आउट करते हैं, आप 2 कब्स को नहीं बचा सकते? टेररिस्ट के लिए भी मुकदमा चलता है, रात को 3:30 बजे कसब के लिए सुप्रीम कोर्ट को उठाया जाता है, उसके लिए भी लोग आवाज उठाते हैं। अवनी के लिए कोई क्यों नहीं आया? नेशनल एनिमल है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि नाम लेना पड़ेगा, अमिताभ बच्चन जी सेव टाइगर कैंपेन के महाराष्ट्र के ब्रांड एम्बेसडर है, सचिन तेंदुलकर हैं। सो ये
नहीं, ये ये जो बहुत दिल को लगती है बात। ये जो जितने उन्होंने सोसाइटी लाइक पेटा और जो ब्रांड एम्बेसडर्स बहुत गर्व से अपने आप के फोटोग्राफ्स छापते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स, आई एम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सो एंड सो, कहाँ हैं वो लोग किसी ने आवाज जिसको आवाज उठानी थी? और एक चीज आपको किस बात से डर रहे हैं सब? आपको मैं कोर्ट की जजमेंट की सारी कॉपी मैंने देखी है। हमें ये भी पता चला है कि जब जिन्होंने पेटिशन दाखिल की थी कोर्ट में, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था ज़मीन के सौदे का नागपुर बेंच में, लेकिन उन्होंने कोर्ट में जब जज ने जजमेंट सुनाया तो उस ज़मीन के सौदे का कहीं पे भी उन्होंने जिक्र नहीं किया है। उन्होंने ये 5 टोटल उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, 5 में से 1 की बॉडी में अवनी T1 के DNA मिले हैं, बाकी 4 में नहीं मिले हैं। मेरे पास उसकी सारी कॉपीज़ हैं, हमने कोर्ट की सारी जजमेंट की कॉपी ने। और सबसे बुरी बात है कि कोर्ट ने मिनिमम, जैसे रूपाली जी ने कहा कि 4 लोग अगर मरते हैं उसके बाद भी उस शेरनी को एक मैन ईटर टाइगर का करार दिया जाता है। उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, उसको एक तरह से उस पर कुछ किसी तरह का आई गेस टैग लगाते हैं, कुछ करते हैं, उसके बाद भी वो मैन ईटिंग करती है, तब उसको शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जाता है। इनको इतनी जल्दबाजी क्या थी कि अच्छा एक चीज़ और है जो हम में से बहुत कम लोगों को पता थी, हमें बड़े विश्वसनीय सूत्रों से पता चला, पिछले 1 साल में महाराष्ट्र में 21 टाइगर मारे गए हैं शूट एट साइट से, 38 लेपर्ड्स मारे गए और ये हैं। मुंगटीवार क्या कर रहा है? मतलब हमें शर्म आती है कि हम लोग इनको चुनते हैं, ये हमारे सर्वेंट हैं, हम इनके सर्वेंट नहीं हैं, हम इनको चुनते हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारी जो तकलीफ है उसका निवारण करे, ना कि हमें तकलीफ दे। ये हमारे पैसे पे इतना बड़ा राज करते हैं। मुझे एक्चुअली दुख है उस बात का कि लोगों की समझ में ये नहीं आता है कि ये दीज पीपल आर सर्वेंट, इनके पैर नहीं छूने चाहिए, इनके कान के नीचे बजाना चाहिए। ओके आनंद जी, क्या आप मानते हैं बहुत वक्त से बात सिर्फ अग्नि की नहीं है, हर जगह रिलायंस का बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जब मैं जमीन की बात करता हूँ, जब मैं किसी और चीज की बात करते हैं, और हम देखते आ रहे हैं बहुत इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। आपको लगता है कि सरकार कहीं प्रेशर में है, या फाइनेंशियल प्रेशर में है, या फाइनेंशियल सपोर्ट वहां से मिलता है? आप क्या कहना चाहेंगे? और जैसे एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगी, बच्चन साहब जो हर चीज पे ब्लॉग लिखते हैं, कुछ भी कहना हो अपनी बात जरूर रख ट्वीट करते हैं। तो अग्नि पे शांत क्यों है? सचिन तो खैर फिर भी इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहते। Do you feel sad about Mr. Bachchan not being active, especially in the case of Avni? Why so silent? Yeah, I feel that the whole country is in a way responsible, whether it's the political groups, whether it's the industrial groups, or whether it's the common citizen. I think we all have to be aware now. Enough is enough. Avni has become a metaphor for so many things. Avni has become some kind of a torchbearer for the preservation of this planet, wildlife. So the damage has been done. Now people ask me, do you think that we can do justice to Avni? You can't do justice because the injustice has been done. There is no justice that can be done when injustice has happened. Now it will be nice if better sense prevails, if we don't, in the name of development or in any other political game, stop all this and come to our senses and save this planet. Not just save the tiger, save the human race by saving the flora and the fauna and the animals. So they are the antidote to everything that's destroying this world. That is the medicine that we need to take and preserve, to preserve ourselves. I mean, if that sense doesn't prevail, then you can go ahead, take all the forests possible, eradicate all the animals you want, build all the buildings that you want, and then you will see that your destruction will happen in less than 10 years. If that is what you want, if you want to finish this world in 10 years, go ahead, do what you want with all the forests and the animals. And if you want this world to remain for all those grandchildren that you plan to have, then please make sure that you preserve these animals and these forests for generations to come. There is one more thing, I will tell you. बहुत कम लोगों को पता है, हिंदुस्तान की जितना भी हिंदुस्तान में पैसा है आज, उसका 51.50% सिर्फ 1% लोगों के पास है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। यानी कि 51.50% इंडिया का जितना भी इकोनॉमी में आज पैसा है, वो सिर्फ 1% लोगों के पास है। तो ये 1% लोग कौन है? ये अडानी, अंबानी जैसे लोग, ये सरकारों को मैनिपुलेट करने पे मजबूर भी करते हैं, उनसे बिचौलियों का काम भी करवाते हैं, और ये करते हैं खुलेआम, क्योंकि इनको पब्लिक से तो कोई पड़ी नहीं है। इनको तो चाहिए कि बस पैसा आए किसी भी तरह, इनको पावर चाहिए। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है जिस तरह से आप जितना एग्रेसिव है इस बात को लेकर, जितना गुस्से में आप हैं,
आपको do you feel sad about Mr. Bachchan is not raising this very important sensible thing, it's I feel sad about every person who's not raising a voice for this. Everyone who says, those people in my building who say, and when I tell them, come for the rally, come support Avni, come stand up for your children. अरे यार शेर ही तो है ना, चिल करना रूपाली. I feel angry with all of them. Why? ठीक है, target Mr. Bachchan because he is apparently the brand ambassador for Save the Tiger. Agreed. उनको बोलना चाहिए था, जबकि वो दिन में 100 ट्वीट्स 50 ट्वीट्स डालते हैं, एक भी ट्वीट नहीं डाला उन्होंने अवनी के लिए, एक भी ब्लॉग भी नहीं लिखा. But do they know something that we do not know? Then please share it with us. Probably. Yeah, see, I look after 56 cats and 14 dogs. And why are they in my house? Because we came, we built buildings and we displaced them. कुछ को डिक्की में डाल देते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी की हड्डी तोड़ देते हैं, उठा के बाहर फेंक देते हैं क्योंकि हमारी जगह हो गई. अब तो जंगल भी नहीं छोड़ रहे. जंगल के अंदर से आप अगर रोड निकाल रहे हैं और रेलवे निकाल रहे हैं, तो जानवर को कैसे पता है कि ये रोड है भाई यहाँ नहीं चलना, ये रेल है भाई यहाँ नहीं चलना. अगर एक हाथी जाता है तो पूरी झुंड जाती है, एक साथ मारे जाएंगे. एंड एंड ऑफ द डे अगर हम मैनग्रोव्स भी कम कर रहे हैं ना, तो हमारे को ही गर्मी बढ़ती है. और अगर मतलब अब मुझे जानवर, चलो छोड़ दो, अम्मी को छोड़ दो, उसके बच्चे को छोड़ दो, जानवरों को छोड़ दो, हमारे नहीं है, हमारे बच्चे तो हमारे हैं ना. एंड ऑफ द डे हमको भी तो जीना ही है आगे. तो एटलीस्ट एक सेल्फिश मोटिव से हम सबको खड़ा होना चाहिए. जैसे रेप हमारे बच्चे का या हमारे बाकी वाले बच्चे का नहीं होता, तब तक हमको लगता है चल कोई नहीं. सेम वे वी आर डूइंग इट टू द एनिमल्स. एक माँ थी जो अपने 2 बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही थी. भाई तुम उसके घर में क्यों घुसे? अगर मेरे घर में एक चोर घुसा था और मैंने उसे गोली मार दी मेरे बच्चों को बचाने, तो मैं तो करेक्ट हूँ. लेकिन अवनी क्यों नहीं है? जस्ट बिकॉज वो बोल नहीं सकती. मतलब वेरी सैडली, अगर अवनी गाय होती ना तो हम उसे बचा लेते. हम सेलेक्टिवली कैसे मारते हैं? किस जानवर को हम डिसाइड करते हैं कि हमें मारना चाहिए और किसको नहीं मारना चाहिए? आनंद जी, आप क्या कहना चाहते हैं? गाय को लेकर जितनी राजनीति, जितना पॉलिटिकल बवाल मचाया जा चुका, चल रहा है, हम बहुत खुश हैं कि आप जानवरों को बचा रहे हैं. आई एम वेरी हैप्पी कि आप गाय को बचा रहे हैं, बिकॉज मुझे भी बहुत ख़राब लगता है जो खूंटे से बंधे हुए बछड़े बंधे रहते हैं ना, जो गर्दन तक ऊपर नहीं कर सकते. अच्छा लगता है कि आप गाय को बचा रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं गाय के लिए, लेकिन साथ ही साथ दूसरे जानवरों के लिए भी लड़ो ना. सिलेक्टिव क्यों हो जाते हो? वैसे तो अगर गाय की आप बात कर रहे हैं तो ये तो माता रानी का शेर था, ये तो माता रानी की सवारी थी, तो इसको क्यों नहीं बचाया? एक माँ भी थी, एक माँ थी साथ में. एक गाय ये भी सिर्फ पेपरों में है और लोगों में फूट डालने के लिए. इनफैक्ट आज भी यूपी नंबर 1 है स्लॉटरिंग में. अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, आप ये सारा डाटा यूपी स्टेट गवर्नमेंट से निकलवा सकते हैं थ्रू RTI. इट्स अ शेमफुल थिंग. हम किस चीज़ में नंबर 1 है? हमारा इस इंडिया का कल्चर क्या था? हमारे यहाँ में हमारे देश में एक रीज़न था कि हर जानवर में हम देवी भगवान का वास देखते हैं, वो एक रीज़न था. लेकिन वो ह्यूमैनिटी आज हमारे देश में बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इन जैसे थोड़े बहुत जो कमीने गंदे लोग जो राजनीति चलाते हैं ना, ये लोगों ने इस देश को बर्बाद किया. और हम लोग को फॉलो करने की आदत है. हम लोग तब तक, जैसा रूपाली मैम ने कहा, अनुषा ने कहा, एकदम सही बात, जब तक मेरी बेटी मेरा बेटा उसके साथ गलत नहीं होगा ना, हम नहीं खड़े होते हैं. हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, बिकॉज ये देश हमारा है. वी हैव टू बी यूनाइटेड अपार्ट फ्रॉम उस पॉलिटिकल पार्टी से बाहर आके सोचो ना, बीजेपी ना कांग्रेस ना शिवसेना. वी आर इंडियंस फर्स्ट. आज हर त्यौहार पॉलिटिकल हो गए हैं, हर बातें पॉलिटिकल होती है. तो कहीं ना कहीं ये उन चीजों का असर है कि हम लोग डम हो गए. हम सिर्फ मेरा होगा. The only thing we need to do right now immediately is to save tell the people cubs. that please save those 2 cubs यार. बाकी दुनिया तेल लेने गई, The cubs हमारे have बीच की फूट तेल लेने गई. 2 बच्चों को बचा लो भाई. माँ तो मार दिए, अब कोई नहीं, बच्चों को तो बचा लो. Because they are cat family, and cats का body goes into a shutdown after 8 to 10 days of starvation mode. तो अगर अवनी का पेट खाली था फ्राइडे को, दैट मीन्स ट्यूसडे शायद उन्होंने लास्ट कुछ थोड़ा बहुत वो लोग ने, बच्चों ने और अवनी ने खाया होगा. ओके, तो ट्यूसडे से लेके आज, टुडे इज व्हाट, फ्राइडे, दे आर हंग्री. यू अंडरस्टैंड? अगर हम उन्हें ढूंढते हैं तो क्या वो डैमेज रिवर्सिबल होगा? हैव वी गॉन टू बियॉन्ड? And tell me, कब ढूंढेंगे उन्हें? मदरलेस चिल्ड्रन कहाँ छुपेंगे? 2 बच्चे 100 आदमी नहीं ढूंढ सकते. ऐसे कैसे कि मिल नहीं रहे वो लोग. एंड ऑल्सो जो अवनी को मारा ना, वो अगर अटैक कर रही होती तो सीधे मारते. उसको शोल्डर ब्लेड में साइड से मारा गया, मतलब वो कहीं जा रही थी और इसने उसको सीधे गोली मारी. जबकि ट्रैंक्विलाइजर मारना चाहिए था, क्योंकि वो आपको फेस नहीं कर रही थी ना आपकी ओर आ रही थी, वो कहीं और जा रही थी. दूसरी बात ये भी है, ये दिवाली के 3-4 दिन पहले था.
when it is no moon, Amavasya. The worst In the forest, how will they see in that light, where there's no light, proper night? You cannot see otherwise in a dense forest in the night. After 6 to 6, between 6 and 6 in the evening till morning, you're not supposed to go and tranquilize also. And also- but yet they still went. And And the how danger- did they manage to see with that distance and aim a shot? It was murder. It was a murder. It was It was planned. cold-blooded It was murder. planned just before Murder, Diwali. that's it. छुट्टियां हो जाती है. कोर्ट सब बंद लोग- हो जाएगा फ्राइडे They को, wanted to do फ्राइडे this. दिन में कोर्ट बंद होगा, फ्राइडे रात को मार और दो इसको. अगर forest department really cares for the tigers and they say they love animals, then why was a sharpshooter kept there for 2 months? Why? And that वो was the भी- most important Even thing. after Menaka ji gave he's the a order and poacher. he went back to be उसके sent बाद back to भी Delhi. अदालत See में the केस है. history, No, na? he went and he was called back. Why? Why did our Maharashtra government hire a criminal, a sharpshooter hunter to hunt a national animal? It's poaching. Why has Munganti War given 6 shoot at sight orders for tigers in the last 1 year? 2016 में वो रिलायंस का जो आपको ये बेचा गया है जो फॉरेस्ट लैंड, वो रेगुलराइज हुआ. 2017 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिक्लेयर किया कि हम 8 से 10 लाख का कॉम्पेंसेशन देंगे और वाइल्ड लाइफ रिलेटेड डेथ के लिए, और अचानक से सारे जानवर मैन ईटर्स बन गए. एक और उसमें एक हिच क्या है मैं बताता हूँ आपको. जितने भी लोग मरे हैं उनमें मैक्सिमम 50 प्लस 60 के आसपास है. जो किसी Senior काम के citizens, नहीं है अपने senior घर में, citizens. मार के फेंक दो, अरे 10 लाख मिलेगा. नहीं, और उस- Anand ji, what's your take on this? This is it's a very important point. There's also one more thing just I like to add. The animal was shot from the side. The animal was shot with a caliber of bullet which is not allowed as per .32 law. bore. There was no veterinarian present at the venue. It was shot at a time when it was not supposed to be shot. And it was shot with bullets when it had to be tranquilized because it was not even looking at the man. It was going somewhere else. I have seen that man's pictures, yeah. लेपर्ड ऐसे शोल्डर पे लेके खड़ा है मरा हुआ. शेर में उसकी बीवी मस्त चमक चलो जैसे कपड़े पहन के दोनों ऐसे साइड में बैठ के पोज मार रहे हैं मरे हुए जानवर के और साथ. डांट बाद कोई में style डाल है? दिया गया, मरने के बाद डांट डाल दिया. अगर जानवर आपकी तरफ चार्ज कर रहा है, जो आपने बोला अटैक करना है, तो डांट लगा रहेगा बॉडी में. कॉमन सेंस है. You know, the dart is also And in this the is all other, postmortem, the huh? dart has gone the opposite side. The dart should have gone this way. It has gone this way. So That means it's been obvious. It's obvious that the dart was actually क्या placed हमारी over ये there. क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वही इंक्वायरी करेंगे, वही मुकदमा चलाएंगे, वही डिसीजन लेंगे, और बाकी जो मारने वाले वो तो छूट जाएंगे, क्योंकि ये तो जानवर है. जानवर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसे वोट करने का हक नहीं है इस देश में. और हमारा पैसा, taxpayers' money is going to kill our national animal. Is that right? इसके बाद क्या आपको नहीं लगता कि ये बात और आगे तक पहुंचाई जानी चाहिए? मोदी पहुंचाई और जानी मेनका चाहिए, गांधी की मैं बात मेनका करूंगा. गांधी जी क्या उनसे आपकी बातचीत हो रही है या उनको किसी भी तरीके से लेटर लिख के या उनको, क्योंकि इस अवनी को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी, बहुत ज्यादा बवाल हो चुका है. मीडिया ने बहुत इस बात को बाहर लाया है जो भी. थैंक यू सो मच Thank द you so मीडिया much. फॉर दैट. थैंक यू. It should be taken to मेनका गांधी and all the big. बहुत साल पहले जब टेलीविज़न पे मैंने एक सीरियल बनाई थी शिकारी चिंपू. शिकारी चिंपू को लेके मेनका गांधी ने इश्यू उठाई. मैं गया उनके घर और उन्होंने कहा कि शिकारी इज़ एन अनपार्लियामेंटेरियन वर्ड. यू हैव टू रिमूव द वर्ड शिकारी फ्रॉम शिकारी चिंपू एंड शी स्टॉप्ड द सीरियल. So we changed it to Chimpu Safari or whatever. If she can stop a serial, why couldn't she stop the killing of Avni? That's all I want to know. So true. I want to know if this voice is reaching the powers to be, if this voice will make any difference to the powers who can stop this illegal activity in forests, this illegal development of land. If any one of you out there can see sense in this and see the danger of our future, please act, because I think there's a lot has been said about it till today. The media has talked about it, the people have talked about it, the world is talking about it, and no one, I can't hear an answer to this from anywhere. Because there is no answer. आज अगर मीडिया नहीं होती तो ये बात किसी तक नहीं पहुंचती. क्या पॉलिटिशियंस आज जो आवाज़ उठा रहे हैं अवनी के लिए, मरने के बाद, मरने के पहले नहीं, वो आवाज़ उठाते हैं? आपको पता है एक चीज़, उन्होंने पोस्टमार्टम भी इतनी जल्दबाजी में किया. अगर आप वो सारा इंसिडेंट देखोगे, उन्होंने किसी भी एनजीओ के बंदे को या किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया. वो बंदा जेरिल बेनेट, जिसने सबसे पहले इस केस को लेके आवाज़ उठाई थी, वो मुझे बॉम्बे फ़ोन करके प्लीज़ डू समथिंग कि हमको जाने नहीं. एवरीथिंग दे वांट टू मेक इट हाइपोथेटिकल. हर चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहे थे.
इतनी जल्दबाजी में उसकी बॉडी को जलाया गया, क्यों? रीजन। अच्छा, उसके अलावा उस पोस्टमार्टम में डॉक्टर कहीं और का होना चाहिए था, डॉक्टर भी वही था जो वो शफात अली के साथ में इस हंटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व था, क्यों? ये सारे वाइल्ड लाइफ रेगुलेशंस के खिलाफ थे, सब सारे रूल्स उन्होंने तोड़े। नहीं, पर जनरली वैसे ही होता है, जब भी कहीं फैक्ट्री बनानी होती है तो अचानक एक एनिमल मैनेजर हो जाता है, फिर एक हंटर कहीं से आता है जो बेसिकली नवाब होता है, आता है, ठोकता है, निकल जाता है, हम खुश होते हैं 1499 टाइगर बाकी है, अब वो भी उड़ जाएंगे, उसके बाद में सिर्फ शेवारा वाले की पोस्टर में टाइगर मिलेगी, एक्सटिंक्ट एनिमल। नहीं, पुतले बनेंगे, पुतले बनेंगे 5 साल के बाद। डिजिटल होता है ना, डिजिटली पुतला बनेगा ना, टाइगर का पुतला, हमारा नेशनल एनिमल था टाइगर, उसका पुतला बनाएंगे हम लोग। क्या आपको लगता नहीं कि मोदी जी तक ये किसी माध्यम से, लेटर के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जी को भी इस बात में बोलना चाहिए, वो इस बात को लेकर Of course बोलना चाहिए. Why is he keeping silent? We have tweeted, we have sent letters, everything, but why is our Prime Minister silent? I just pray Why is he not speaking up for a national animal? ये आवाज़ सिर्फ एक तरफा का है, दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, as though no one is scared, no one is bothering, and that is a national shame. हम लोग कहते हैं कि हम सब patriots हैं, we love our country. This is a national shame. The killing Shame on of Avni. all of you Yes. for not standing up for Avni. The whole Every world. person who sits at home and doesn't raise a voice for this, shame on you. National anthem के लिए खड़े होना is not national pride. Standing up for your national pride is actually national pride. Now Navne's died, everybody's spoken, at least let us do something before the cubs die. नहीं तो फिर से एक और ट्वीट, फिर से एक और स्टोरी, उससे थोड़ी ना लाइफ बनती है। और वो मर्डरर मुंगन दीवार को निकालो, और कोई नहीं तो पता नहीं अगले 1 साल में और बैठने कितने शेर और कितने चीते और कितने वाइल्ड लाइफ मारेगा, कितने फॉरेस्ट दे दिए जाएंगे। और आपके वी माध्यम डोंट से- वांट अ फॉरेस्ट टू गो। हम लोग एक चीज़ और कहना चाहते हैं कि इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट से ना हो, सेंट्रल से अपॉइंट हो, और इसकी निष्पक्ष पूरी जांच होनी चाहिए कि गेम क्या है। And NGO should be involved in it to actually 100%. work for the animals. If 100%. not from here, We you want get a them from SIT to anywhere. be appointed बिग for this कैट्स case. रेस्क्यू, देयर आर सो मेनी, बाहर से एनजीओज लाओ ना। हमारे संजय गांधी नेशनल पार्क के जो रॉ है, पवन, इन्होंने कहा था कि हम 6 से 7 लाख में उस टाइग्रेस को, अवनी को और उसके जिंदा दोनों पकड़ बच्चों के को ले आए। जिंदा पकड़ेंगे। तो क्यों फिर 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए शफात अली खान को शिकार करने देने के लिए? क्या वो पैसे शफात अली खान ने आपको दिए थे कि मुझे मर्द बनने का शौक है, मुझे वो टाइगर को मारने दो? हाँ, मेरे असगर अली को अब तक मर्द बनने का मौका नहीं हो, जब तक शेर का शिकार नहीं होगा तब तक मर्दानगी साबित नहीं होगी। इसलिए आप लोगों ने असगर अली को जाने दिया वहां पर मारने के लिए, बताइए ना। नहीं, इट्स अ शेम टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। इवन वी, हम लोगों को इतना बुरा लगता है, हमने एक इतने सालों बाद बदलाव लाने के लिए वोट किया, देवेंद्र फडणवीस को चुन के लाए, और मुझे आज शर्म आती है देवेंद्र फडणवीस पर कि वो किस तरह की मूर्खों की बातें करते हैं कि मेनका गांधी एनिमल लवर है इसलिए उनको बुरा लग रहा है। मतलब एक सीएम इस तरह की हास्यास्पद बातें कर रहा है। यू नो, आई उसका justification नहीं है उनके पास। अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो मैं चाहूंगी कि मोदी जी इस बारे में बोलें, बिल्कुल। बिकॉज please हम लोगों ने मोदी इतने जी पिछले बोले, 3 मोदी से जी 4 बचाओ। साल तक, अरे तुम तो मोदी भक्त हो, तुम तो मोदी भक्त हो, बहुत हमने उनकी भक्ति कर ली, भक्ति अब कर- बोलिए। नहीं, एटलीस्ट बचाइए, अभी वापस बोलेंगे फिर से मर जाएगा। अरे बचा लो, बोल तो सभी रहे हैं, कर कौन रहा है? Let him at least save those 2 children. That's it. They didn't do anything wrong, यार। वन वर्ड फ्रॉम मोदी जी एंड आई एम श्योर दे विल, पूरा 4 आदमी जाके ढूंढ के लेके आएंगे उन बच्चों जो को। 100 आदमी और खुद झूठ नहीं नहीं करते। चाहिए उनके लिए प्रॉपर एनक्लोजर चाहिए उसी फॉरेस्ट में। क्यों दे फॉरेस्ट हम अदानी अंबानी को? उनके बाप का है क्या? वो हमारी धरोहर है, हमारे बच्चों का है। प्लीज 11 नवंबर 2018 को 4 बजे वर्ली सीफेस पे आइए। जितने लोग आ सकते हैं इस कॉज के लिए, देश को बचाने के लिए। लोग जब तक इकट्ठा नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी का नाम ही ये है कि हम सब एक हो, और जो पावर में बैठे उनको बताएं कि हम उनके खिलाफ हैं आज। Just Please. save the world. Just please save the world. Please Please. do come and join us on 11 11th November. November, Worli Sea Face, 4 o'clock. 11 नवंबर शाम को 4 बजे वर्ली सी फेस कॉमन मैन स्टैचू से शुरू हो रहा है, क्योंकि हम सब कॉमन मैन हैं जो आज हमारी ताकत दिखाएंगे। प्लीज़ आइएगा
और अवनी के लिए, उसके बच्चों के लिए और अपने आप के लिए वह हमारे साथ खड़े हुई है. प्लीज Save Avni and save yourself. 11th November is a Sunday. There should be no excuse for anybody not to come to Worli Sea Face and join this very, very, very important clarion call to the world to save our country, our world, our forests, our wildlife. Please do this. It is the future of your children. Thank you. thank you, thank you. But we've come down to this. Sir, look camera. Please save cubs, please. Siddhant, Thank you. let's go picture Siddhant. Look camera. Sir. Chotu You guys said I'm like a hangman. That's why I said hang the hangman. Here, everyone. Yeah, you said I'm like a hangman. He has given justification for why he has killed the tiger. Saying what difference would it have made to enclosure somewhere? तो इधर आ बच्चे तुझे वो पता था जिंदा करने वो का क्या मतलब? आया ही नहीं सामने कभी. Done, done. No, everyone's not seeing. Everyone's talking. Okay. Sorry. Thank you. Ready? Yeah. You got the dogs also? Yeah, but that is coming in between. तो remove it ना बाबा. How will I remove? नसीम भाई, पन्नू जी, Yeah, थोड़ा सा वो left. Ready? Here. Sit down, wait. No. You got all the What's humans. up? Please don't look Everyone happy. here. You got all the human Please beings don't on the look floor happy. and all the dogs on the bench. Please don't look happy. Yeah, Bubu, Yeah. don't smile. here. Yeah. See you. Bubu, ये ले. ठीक है. एक last. ले लो. जल्दी ले लो.